Hello dear students, I am Garima Miss. Welcome back to my English lecture. This is the second and the last lecture of the writing skills 3.6, the art of comparing. In the last lecture we had already seen introduction, format of writing, art of comparing, and even we had started line by line explanation of this chapter. However, that is not yet complete. So today in this lecture what we are going to do, please see in this slide, we are going to do line by line. Firstly we will complete line by line explanation of this chapter, where we are going to see remaining part of it and one sample which is there, that also we will do, so that we will understand that how in exam if it is coming how we have to do. After that we are going to solve one more example question. For your understanding I am going to give you one more example question. However एक example question हमने last lecture में कर लिया है, पर ये lecture में भी मैं एक example question आपको दूंगी and I will make you solve also. Okay, we will solve that in the lecture itself, and one more I will give as a homework. So all this I require whenever the college will reopen, I require in your notebook. So write that all in your notebook. Okay, so without wasting time, let's move on to 3.6, the art of comparing. Where we stopped, from there we are going to start. Now we will see the prerequisites of comparing. It means necessity. क्या चीज़ ज़रूरी है to stand on the stage and speak. You can see on the page number 123 last 4 points are given. We will look at these. First point, comparing requires language fluency, clarity of thoughts and confidence. अगर आप comparer हो, when you are standing on the stage and when you are speaking, आप में लैंग्वेज फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है. यू शुड हैव द स्टोर हाउस ऑफ वर्ड्स. आपके पास ढेर सारा वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पे वेयर विच प्लेस आई शुड स्पीक इन सच अ वे. सो यू शुड हैव अ गुड रीडिंग. आप जब तक खुद अच्छा पढ़ाई रीडिंग नहीं करते हो तो वर्ड्स तो ज्ञान होगा ही नहीं. तो आप में यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ वोकैबलरी. वर्ड्स शुड बी देयर इन योर माइंड, देन ओनली यू कैन speak on the stage. Clarity, whatever the words you are using, it should be clear to the audiences. गलत उच्चारण भी मत करो, okay? और जो बोलने वाले हो, whatever you want to speak, your thoughts should be clearer, okay? It's not should be wrong. Whatever you want to speak, that thought would be understood by the audience. याद रखो, तुम mediator हो, तुमको audiences से connect करना है. Audience को तुम्हारी बातें समझ में आना is very compulsory. Whatever you are speaking, the audiences should understand. That way of language you should use while standing on the stage. Of course confidence is required. ये तो मैंने पहले भी बताया that while speaking on the stage, being the work of the anchor, you should be very confident. Second, a basic understanding of the nature and the tone of the event is a must. क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है? A basic understanding of a nature and the tone, whatever the tone that you are using in that event is very much required. Okay, the way that you are presenting आपको पता रहना चाहिए. You should know the events. Okay, and the way that you are speaking, आपका language of speaking should be very formal. Okay. Third, a simple but dignified style with words that come from heart. ऐसा नहीं कि आप difficult words उठा के बोल रहे हो तो audience को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, या language भी आप ऐसा use कर रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है. You should use such language that is understood by the audience. It means it may be the mixture of English, हिंदी, मराठी, ये सब mix करके भी आप stage पे बोल सकते हो, पर आपको ऐसा बोलने का है कि हमारे audience को सब समझ में आना चाहिए. मतलब audience में कुछ लोग English समझते हैं, कुछ लोग हिंदी समझते हैं, कुछ लोग मराठी समझते हैं. जो लैंग्वेज जहाँ पे फेमस है उस टाइप से आपको अंडरस्टैंड करके स्टेज पे बोलने का है, सो दैट द ऑडियंस विल कनेक्ट टू द एंकरर. इज दैट क्लियर? और एकदम प्रॉपर वे में डिग्निफाइड स्टाइल में बोलना है, मीन्स एकदम ओवर नहीं शो करना है. सिंपल वे ऑफ वे सेइंग एंड वॉट एवर इज देयर इन योर हार्ट. जो आपको किसी भी थिंग्स के लिए, जैसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ तो आपको कुछ बोलना है तो यू कैन स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, मीन्स वॉट यू थिंक दैट यू हैव टू से. ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत बोल के आ गए. ओके. फोर्थ पॉइंट आप देखो नेक्स्ट पेज 124 पेज नंबर पे क्या बोला है. एबिलिटी टू डील वर्क विद टेक्नीशियन, इवेंट ऑर्गेनाइजर, गेस्ट स्पीकर्स. It is a part of his
ऑफ हिज ड्यूटी और प्रोफेशन। तो आप में इतना तो एबिलिटी स्टूडेंट्स होना चाहिए दैट यू शुड वर्क ओके प्रॉपरली विद द टेक्नीशियंस, जो साउंड वगैरह इफेक्ट दिखा रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन बराबर रहना चाहिए। जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जहाँ पे यू नो पर्सन पार्टिसिपेंट्स कहाँ पे बोलने वाले हैं, तो उससे आपका कनेक्शन होना चाहिए। कोई गेस्ट स्पीकर आने वाला है तो ऑन द स्पॉट उनको चांस दो इन बिटवीन ऑफ द फंक्शन टू स्पीक। ये सब आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि फंक्शन में कब जैसा स्क्रिप्ट बना है वैसा तो नहीं जाता है, बीच बीच में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं आप में इतना एबिलिटी होना चाहिए दैट यू कैन मॉड्यूलेट, यू कैन चेंज एंड यू कैन प्रेजेंट ऑन द स्टेज इन अ वेरी प्रॉपर वे। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज और हर ड्यूटी और प्रोफेशन ऑफ द एंकरर टू अंडरस्टैंड द साउंड, द म्यूजिक, द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे। अगर आप म्यूज़िक पहले ही स्टार्ट हो गया और अभी एंकरिंग चालू है तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो आप देखोगे पहले एंकर को बोल के जाने के बाद ही म्यूज़िक स्टार्ट होना चाहिए। आप इतना आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए विद द टेक्नीशियन, विद द साउंड मैनेजर, विद द इवेंट ऑर्गेनाइजर इन और गेस्ट स्पीकर, ठीक है। तो इतना कनेक्शन के बाद ही आप देखोगे एक इवेंट प्रॉपर बन सकता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द फिलर्स. Fillers, if you would see, what do you mean by the term fillers? Fillers, it means in between the program. It's the work of the comparer to engage all the especially audiences. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रेजेंटेशन, एक परफॉर्मेंस हो जाता है, जैसे डांस का हो गया, स्किट परफॉर्मेंस हो गया। अब वो लोग जब जाते हैं तो नेक्स्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम पे हमको फिलर्स की ज़रूरत रहती है। फिलर्स में भी सिंगर्स आ जाए या म्यूज़िकल बैंड प्लेयर्स आ सकते हैं, या खुद एंकरर को कभी कभी रोल प्ले करना पड़ता है फिलर का। इट मीन्स वो कभी थोड़ा आप लोगों को कॉमिक करके हंसाता है, और फॉर एग्जांपल जोक के थ्रू आप लोगों को एंटरटेन करता है, तो वो वर्क होता है फिलर्स का। सो लेट्स सी इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 124 व्हाट हियर इट हैज़ बीन सेड, व्हाइल एंकरिंग द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज टू कीप द ऑडियंस एंगेज। एक एंकरर का सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस क्या, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एंकरर? टू एंगेज द ऑडियंस सो दैट audiences never feel bored of the program. फिलर्स आर स्मॉल परफॉर्मेंसेस। फिलर्स कौन होते हैं? एक कोई बड़ा फंक्शन जैसे होने वाला है तो उससे पहले आप देखोगे जो फिलर्स रहते हैं दे प्रेजेंट द स्मॉल परफॉर्मेंसेस, इनैक्टमेंट होता है, मे बी वन पर्सन इज डूइंग टू कीप द ऑडियंसेस एंटरटेन एंड ऑफ कोर्स अटेंटिव। ओके, द रोल ऑफ अ फिलर कैन ऑल्सो बी दैट ऑफ प्रोवाइडिंग कॉमिक रिलीफ बिटवीन टू परफॉर्मेंसेस। अगर बहुत जैसे मॉडलिंग प्रेजेंटेशन हो रहा है, मॉडलिंग का कोई इवेंट है, या डांस इवेंट है, या स्किट का इवेंट हो रहा है, तो ये सारे इवेंट्स होने के बीच में आप देखोगे फिलर्स जो वो लोग अपना ड्रेस चेंज और वॉट एवर न्यू फंक्शन स्टार्ट होने से पहले जो टाइम लेते हैं वो टाइम पे हमको फिलर्स का ज़रूरत पड़ता है। तो वो फिलर्स क्या करता है? फिलर्स इट मीन्स एक छोटा परफॉर्मेंस सिंगिंग के थ्रू, कॉमिक के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया, या तो एंकरर खुद ही कॉमिक करता है या किसी को बुला के कॉमेडी वगैरह प्रेजेंट करवाता है ऑन द स्टेज। दे आर usually required when the schedule of the program is delayed or disturbed for some reason, या फॉर एग्जाम्पल चीफ गेस्ट अभी तक आए नहीं है और हमको प्रोग्राम स्टार्ट करने का है तो हमको फिलर्स का ज़रूरत पड़ता है। सो एंकरर शुड नो विच पर्सन शुड बी कॉल्ड अपॉन द स्टेज टू enact, to present, to make the audiences engage so that the audiences never feel bored. Okay, one can choose from multiple types of fillers such as mimicry items, riddles, anecdotes, fun facts, jokes, recitation of a poetry or a small performances to suit the event. ये बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें फिलर्स में बहुत कुछ होता है, सिंगिंग कर सकते हो, रिडल्स हो, पहेली जो होती है ऐसे करके ऑडियंसेस से पूछ सकते हो, कोई पोएम आप रिसाइट कर सकते हो, फन के लिए जोक्स वगैरह बोल सकते हो, मिमिक्री किसी का कर सकते हो। तो दीज ऑल आर द वर्क ऑफ द फिलर्स। द कंपेयर शुड कीप द फिलर्स रेडी बिफोर हैंड इन सम वे दैट ही और शी शुड कीप द स्क्रिप्ट रेडी। और फिलर्स हमेशा ये वर्क है कंपेरर का कि कम से कम 3-4 अपने साइड में रखे कि कभी भी अगर प्रोग्राम डिले हो रहा है, लेट हो रहा है और इट इज़ नॉट बीन शेड्यूल्ड ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देन दे कैन ऑन एंड देयर कैन कॉल अपॉन द स्टेज दीज फिलर्स एंड कैन present the script and make the audiences entertained. One must keep in mind that fillers are very important. सबको ध्यान रखने वाली एक ज़रूरी बात क्या है कि फिलर्स
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे आर बाइंड द प्रोग्राम एंड मेंटेन इट्स कंटिन्यूटी. फिलर्स अगर नहीं रहेंगे देन ऑडियंसेस विल स्टार्ट फीलिंग बोर्ड. सो फिलर्स आर रिक्वायर्ड एंड फिलर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बाइंड, to join the audiences with the things what is happening on the stage. Okay, and of course they maintain the continuity of the program में उनको बोर नहीं होता है audiences को, they go on feeling the entertained, and ये काम रहता है fillers का. ओके, सो ये हमारा पूरा हो गया आर्ट ऑफ कंपेयरिंग, जिसमें हमने देखा most important thing what is art of comparing. Then we had seen what is the role of the MC, that is art of comparer का work क्या होता है. Okay, and most important you can see master of ceremonies, that is MC means master of ceremonies जो रहता है head, उसका work क्या रहता है. प्री रिक्विजिट भी देखा, necessity क्या है एक एंकरर की, और फिलर्स का work क्या होता है. Now we are going to see in the text book how the question is going to come, और उससे related अगर एग्जाम में हमको बोर्ड में लिखने का है. of course this is a board question and it is going to come for 4 marks, and this question if you would see, this is a answer is given, one sample is given, the same pattern we have to follow in the board. तो ध्यान से ये पैटर्न देखो. however ये पैटर्न मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया है in the last lecture, so please see the pattern more properly so that you will understand it more better. Okay, so a sample is given of comparing script. Okay, so we will take one first. आपको पहले भी बताया है कि this comparing section is of somewhere around 6 points. 6 points पे ये पूरा बेस है. फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कैसे करेगा कंपेरर, सी सबको इंट्रोड्यूस करने का है तो वो प्रॉपरली कम करेगा, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखने का है. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एक्सटेंड अ वेरी वार्म एंड हार्टफुल वेलकम टू यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर कॉलेज. ओके, तो ये सब लाइन ना आप लोग बाय हार्ट कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपको सेम का सेम लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, सो इफ़ यू कैन राइट मोर प्रॉपरली, मोर बेटर देन इट, आई वेलकम इट. अगर इससे भी अच्छा लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ये लाइन्स आप एग्जाम में स्टार्टिंग में आपको लिखना ही है. टुडे वी हैव ऑर्गेनाइज, जो भी इवेंट है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, एनुअल फंक्शन है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो वहाँ पे लिखना है. ठीक है, इवनिंग ऑफ सॉन्ग डांस एंड पेजेंट्री फॉर यू, गिविंग अ क्विक एक्सोटिक टेस्ट ऑफ इंडिया. कि यहाँ पे क्या प्रोग्राम है, यहाँ पे डांस का भी है, सिंगिंग का भी है. ये सब मिला के हमारे जो कंट्री इंडिया का एग्जॉटिक कल्चर है, इट इज़ गोइंग टू बी शोन. वी कैन से ये एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है. ठीक है, सो वी नेक्स्ट पैरा में इस तरीके से ही लिखना है, पैरा बाय पैरा. ठीक है, वी वेलकम यू इन द मिड्स और इन द ट्रेडिशनल इंडियन वे विथ कुमकुम तिलक ऑन द फोरहेड. इट इज़ रेड टू सिग्निफाई द ऑस्पिशियस ओकेजन, द आरती to remove the evil eye with the sacred fire and the trumpet signaling the beginning of the function. फंक्शन जब स्टार्ट होता है तो देखो आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं. ठीक है, तो ये सारे का आपको इंपॉर्टेंस देना है. हमारे इंडियन कल्चर में क्यों किया जाता है, वाई वी आर डूइंग सच थिंग. रेड तिलक क्यों लगाते हैं फोरहेड पे, दैट यू हैव टू राइट. रेड सिग्निफाइज व्हाट, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन वाई वी आर डूइंग द आरती, आरती क्यों करते हैं. ओके, और यू कैन सी वाई वी द लैम्प, देखो लिट करते हैं ना लैम्प, तो वो उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है. तो ये सारा का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस आपको ये पैराग्राफ में लिखने का है. ठीक है, इतना आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन हो गया. तो दिस इंट्रोडक्शन सेक्शन इफ यू वुड सी कंसिस्ट ऑफ 3 पैराग्राफ वेयर यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग द इंट्रो, दैट हु यू आर एंड मेकिंग एवरीवन गुड आफ्टरनून. सेकेंड में आप बताओ कि क्या फंक्शन मना रहे हैं यहाँ पर, और थर्ड में जो भी स्टार्टिंग में होने वाला है वो बताओ कि सबसे पहले हम यहाँ पर हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फंक्शन. अब स्टार्ट द फंक्शन होने वाला है, मतलब पहले बता दो कि इट इज़ गोइंग टू लिटिंग अप द लैम्प, तो वो क्या करने वाले हैं वो पहले ही बताना रहता है. अब आपको नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखने का है, लाइटनिंग द लैम्प. सेकेंड इवेंट क्या रहता है इन्नी बिग फंक्शन में, द सेकेंड इज वेलकम स्पीच एंड इट वॉज फॉलोड बाय लाइटनिंग द लैम्प. सो आई कॉल अपॉन आवर chairperson, Miss whosoever is the chief guest, that person name would come, okay, to light the lamp to signify the opening of our event. So here you can see lightning of the lamp, if of course it is required, any of the main event if it is there. So for that if you would see, you have to call upon the chief guest, whosoever had came in the big dignitaries line, those whosoever is sitting, you have to call upon that chief guest on the stage. So for that you have to say I call upon, it means it is the work of the
who? It is work of the comparer, the anchorer, to call upon the stage these important people and making them understand that they have to lit up the light, and as they will lit up the light, the function will start. Okay, the opening of the event is going to start. So that you have to write. Third para, थर्ड पॉइंट इट मीन्स, थर्ड पॉइंट में अब जब लाइटनिंग ऑफ द इवेंट हो गया, देन थर्ड व्हाट इट कम्स इज द नन अदर देन अबाउट द इवेंट. अब इसमें आप लोग एंट्रीज डाल सकते हो, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4, मतलब जितने भी इवेंट्स होने वाले, वॉट एवर द इवेंट्स और एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी हैपन, दैट यू कैन राइट. ओके, सो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सा प्रोग्राम शेड्यूल्ड है, हाउ मेनी प्रोग्राम्स आर गोइंग टू हैपन, दैट यू शुड नो. और प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक सम पॉइंट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और स्टार्ट खत्म होने के बाद यू हैव टू से थैंक्स फॉर डूइंग सच अ नाइस परफॉर्मेंस, उनको अपलॉड करने का रहता है. तो ये आप लोग देखोगे, दिस यू हैव टू राइट. और इसमें आप लोग पॉइंट्स बना सकते हो, 3-4 एक्टिविटीज़ डाल सकते हो, सिंगिंग का, डांसिंग का, पेजेंट्री का, वॉट एवर यू कैन पुट फॉरवर्ड, यू कैन डू ओवर हियर. सो वी विल सी पेज नंबर 124. Third point about the event. The first para what you can write, our country India is historically ancient, spiritually deep, geographically vast, and culturally rich. She has traditions, customs, and mores which are thousands of years old. Though making fast progress in the 21st century, her music, dance, drama, and languages survive and renew themselves continuously through the ages. तो ये पैराग्राफ में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे क्या होने वाला है. इवनिंग में they are going to present the exotic taste of India. It means annual function is there. So exotic taste of India, it means culturally, if you would see our country, we are having so many cultures, so that culture is being presented over here. So the culture starts from the history, so that history culturally you have to present that how it is rich, how it is been liked by everyone. Or India country का culture, if you would see, you have to present in this 21st century through music, through dance, through drama, through different languages, and all it is going to come. तो ये सारा things आपको first para में लिखने का है. Second para में we offer you this evening a tantalizing glimpse. It means a marvelous, beautiful glimpse of Indian culture. So you have to present that Indian culture is very rich, and of course heritage, if you would say, is known for it. So how it is rich, that you have to present in your writing. ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा, और आप इससे अच्छा भी लिख सकते हो, और if it is not, you can have to study this. We shall try to take you to the various corners of India and introduce you to the different folk dances hailing from these places, unerring, depicting the geography, history, and the character of its people. So I have to present that here Indian culture is rich through because of these cultures and traditions, and especially because here you can see folk dances are being presented over here. So you have to present that geography, history, and different people, how they are surviving. All these things you have to put forth. Third para, 124 page number, last para, please see. The enduring legend of Lord Krishna and his beloved Radha is embodied in the folk dance we are about to present to you. So that dance is going to present through Lavani. The word Lavani, we all know, it means Lavanya, which means unearthly beauty. It is the best loved and very popular folk performances, we all know. Okay, and from where it is originated from the state of Maharashtra. It consists of the range of romantic songs in Marathi. Lavani, if you would see, is very beautifully presented on the stage. Okay, it's a you can see culture of Maharashtra dance culture. Okay, and it is considered as the none other than popular folk dance of Maharashtra. It consists of a range of different songs on that. मराठी सॉन्ग्स ऑन दैट द लावनी इज प्रेजेंटेड. लावनी डिफरेंट सॉन्ग्स पे प्रेजेंट किया जाता है. महाराष्ट्र का स्पेशली पॉपुलर फोक डांस है. लावनी, लाइक ऑल द फोक फॉर्म्स, हैज़ इवॉल्व्ड एंड चेंज थ्रू द एज. बट जैसे जैसे एजेस, इफ यू वुड सी, इट इज चेंजिंग. द परफॉर्मेंसेज, द वे द पीपल एनैक्ट ऑन द स्टेज, इट इज बीन चेंज्ड. इनिशियली द लावनी वॉज परफॉर्म्ड इन अ बैठक, ओके, और सिटिंग पोजिशन. पहले ऐसा होता था.
because just shown the adakari, okay, that is the skill or facial expression. Just Lavani shows the facial expression or gestures. But as the time passes, you can see now there is more develop or changes in the varieties of Lavani. The Lavani then evolved to be or standing khadi, standing, okay, where people are standing and presenting the dance performance. So we can say standing position also nowadays Lavani performances were there, whereby the performer not only signs but also dances along with the song. So earlier you can see only the facial expressions were being presented in the Lavani, that we call it as adakari or skillful facial expression. But as the time passes, you can see that khadi Lavani is been done. It means the performer is standing on the stage and performing. So that also it has been done. So whereby the performer, if you would see, sings, okay, and not only sings but also dance on the stage. The songs are supposed, if you would see, sung by gopis or milkmaids, you all know, who epitomize bhakti, devotion towards the Lord Krishna and the Lord of Loves. The songs are a celebration of the love between Lord Krishna and Radha and depict the playful aspects of the relationship. So that basic information you have to present on the stage. The Lavani embodies the Shringar Ras, or Shringar means decorative. It is you can see performers जो रहते हैं ना बहुत decorative present रहते हैं. They are dressing, the way of acting, okay. Rasa means the way that they present, they act, okay. It is been done in a very proper way. अब एंट्री 1 से स्टार्ट करो, मतलब बताओ तुमने पहले इंट्रोड्यूस किया कि तुम्हारे सामने ये डांस परफॉर्मेंस लावनी का होने वाला है, अब बताओ कि कौन लावनी प्रेजेंट करने वाला है. एंट्री 1, लेट्स गेट इनटू द मूड एंड एंजॉय द स्कैंडलाइजिंग यू कैन सी लावनी परफॉर्मेंस. अब ग्रुप को इनवाइट करो ऑन द स्टेज सो दैट इट इज गोइंग टू कम. नेक्स्ट यू कैन सी नाउ put your hands together for a round of applause for this wonderful performance. So फिर जैसे performance start होने वाला है, लोगों को बोलो that it is going to participants are going to come on the stage और वो लोग चले जाते हैं तो thank you for your best performance और I request all the audiences to please applaud for this wonderful performance. Second क्या है, नागालैंड का डांस का परफॉर्मेंस बताने का है. तो कैसे बताओगे? is one of the culturally rich northeastern states of India. The Julian bamboo dance, okay, where Naga especially people of that state hails from that state, okay. So Nagaland, if you would see, culturally very rich state. जैलियन बम्बू डांस जो रहता है वो लोग उन लोग यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले और ये स्टेट का फेमस डांस है. जैसे महाराष्ट्र का लावनी है वैसे ही आप देखोगे नागालैंड का इफ यू वुड सी जैलियन बम्बू डांस इज़ वेरी फेमस. सो अब उसके बारे में बताओ कि जैलियन मतलब क्या होता है. बटरफ्लाई उसको बोलते हैं, ठीक है. द डांस अटेम्प्ट्स टू इमिटेट द मूवमेंट्स ऑफ द बटरफ्लाई. हाउ बटरफ्लाइज आर डांसिंग सेम वे द डांस मूवमेंट्स वुड बी देयर ऑफ द परफॉर्मर्स. डांसर्स वियर द क्लोथ्स एज ब्यूटीफुल लाइक द बटरफ्लाई. जैसे बटरफ्लाई ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहने रहते हैं वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे डांसर्स भी इसी टाइप का ड्रेसेस पहने रहते हैं और विंग्स टाइप हैंड का जेस्चर करते हैं शोइंग दैट दे आर द बटरफ्लाइज. देयर मूवमेंट्स टू आर एज डेलिकेट एज एंड ग्रेसफुल एज अ बटरफ्लाइज एंड एज दे आर मूविंग इट्स ऑल्सो लुक्स लाइक कि जैसे बटरफ्लाइज इज मूविंग. सो इट्स लुक सो ब्यूटिफुल. डांसर्स स्पेशली जो परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज पे दे वियर अ कलरफुल ड्रेसेस एंड देयर कॉस्ट्यूम्स इफ यू वुड सी इज मेड ऑफ रैबिट स्किन कलर, ओके, और डियर कलर और एनिमल्स का टाइप का ड्रेसिंग, जो एनिमल्स के स्किन का कलर जो रहता है वैसा टाइप का ड्रेसिंग उनका रहता है. द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ दिस डांस इज दैट द डांसर्स जंप ऑन द बम्बूज. एक अच्छा सा बात बताऊं कि ये डांस में क्या होता है कि ये जो परफॉर्मर्स होते हैं ना वो बम्बूज के ऊपर जंप करके वैसा परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं ऑन द स्टेज एंड दे डांस विथ ग्रेट एनर्जी एंड स्टैमिना. और बहुत ही एनर्जेटिक डांस होता है ऑन द स्टेज ऑफ दिस नागालैंड. सो नागालैंड फेमस डांस इज जैलियन बम्बू डांस ऑफ नागा डांस और नागा डांस भी हम उसको बोल सकते हैं फ्रॉम नागालैंड.
ये ख़त्म होने के बाद जब उनका परफॉर्मेंस हो जाता है तो लास्ट में जब वो लोग का कंप्लीट होता है, दैट टाइम इट इज़ द वर्क ऑफ द कंपेयरर टू से गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मतलब वो लोग स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनके लिए आप क्लैप करो, ऑडियंस को आपको रिक्वेस्ट करके बोलना है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी एंट्री 3। एंट्री 3 हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एंट्री 4 हम देखते हैं। नेक्स्ट इज entry 4. What is the entry 4? Let's now welcome to our vibrant northeastern dancers for another captivating performance. Sambhalpuri is a small district of the state of Orissa. Orissa का एक small district है और ये it lies टू द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। इट इज़ रिच इन एंशियंट कल्चर। इंडियन कल्चर का ये बहुत फेमस है। ओके एंड स्पेशली इट इज़ नोन फॉर, दिस प्लेस इज़ नोन फॉर आर्ट्स एंड क्राफ्ट। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे संस्कृति का विकास होता है उड़ीसा का। दिस टाइनी डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर द हैंडलूम्स एंड वीवर्स। ये आप देखोगे ये जगह फेमस है वीवर्स। वीवर्स जो कपड़े बुनते हैं वो लोग हाथ से दे यूज टू क्राफ्ट, तो वो लोग को वीवर्स कहते हैं। और वी कैन से हैंडलूम्स, जो हैंडलूम के कपड़े रहते हैं वो सब वो लोग बाय हैंड दे मेक। तो उनका भी एक कल्चर है एंड उनका नेटिव का एक डांस है और उसका नाम है संभलपुरी। संभलपुरी डांस वो लोग करते हैं लाइक मेनी अदर फोक डांसेस एंड दे सेलिब्रेट द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब खेती जब पक जाती है एंड व्हेन वी कट, व्हेन इट इज़ राइप्ड, व्हेन द एग्रीकल्चर इज़ राइप्ड, तैयार हो जाता है और उसको जब कट करते हैं तो वो टाइम पे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और वो सेलिब्रेशन में वो लोग एक डांस परफॉर्मेंस करते हैं। द हे सराउंडिंग द एरिया वेयर द डांस इज़ टू बी परफॉर्म्ड, और वो लोग विथ हे दे यूज टू परफॉर्म, और वेयर दे परफॉर्म पूरे एरिया में लोगों को इन्वाइट करके बीचों बीच ड्राइड ग्रास को बर्न करते हैं एंड इन दिस वे दे फायर लाइट एंड देन दे present the native folk dance of Orissa, that is Sambhalpuri, and it is dedicated to the good harvesting they had done. ठीक है, बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग किया, इसके लिए वो लोग डांस करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द सेलिब्रेटरी मोड ऑफ रिजॉइस अ बॉन्टिफुल हार्वेस्ट। मतलब अच्छा हार्वेस्ट हुआ, चलो उनके डांस परफॉर्मेंस को हम देखते हैं। होने के बाद इट वॉज अ वेरी वंडरफुल परफॉर्मेंस, ऐसे करके आपको लास्ट में ऑडियंस को बोलना है प्लीज़ गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ठीक है। Now next is entry 5. Who is coming in the entry 5 student? That is closing address. Closing address में भी चीफ गेस्ट को आप बुला सकते हो, लास्ट लेक्चर में सिखाया था। ठीक है। सो व्हाट, और अगर चीफ गेस्ट इज नॉट विलिंग टू कम देन दैट टाइम प्रिंसिपल को भी आप बुला सकते हो लास्ट में। ठीक है। सो वी आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वर्ल्ड ऑफ फोक, द नेचुरल स्प्रिंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट. As we can come to the end of this beautiful colorful evening, let us carry with us memories of a time well spent. ये लास्ट में आपको बोलने का है, and for that you can tell or ask chief guest to speak on the events that had happened, or you can call upon stage to the principal also to sum up the event. Okay, इस तरीके से आपको एंड करने का है। लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स के लिए किसी एक पर्सन को आपको बुलाना पड़ेगा। सो last entry is the entry 6, vote of thanks. No programs would be success without a dedicated team of people who work tirelessly behind the screens. I take this opportunity to thank each and every member of the organizing team for putting up this brilliant show and transporting us to the plentiful fields of India. आप यहाँ पे देखोगे ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर आप वोट ऑफ थैंक्स में अगर किसी को बुला नहीं रहे हो तो खुद से ही आपको थैंक्स करना है और खुद से ही आपको लोगों को थैंक्स करना है। और थैंक्स में सबसे पहले आपको बोलना है द डेडिकेटेड टीम हु वर्क टायरसली। पूरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सबसे पहले आपको थैंक्स बोलना है, क्योंकि वो लोग ही इन्वॉल्व थे फॉर मेकिंग दिस फंक्शन अ ग्रेट फंक्शन। पार्टिसिपेंट्स हु वर्क सो मच ऑफ हार्ड वर्क दे हैड डन टू मेक दिस इवेंट सो पॉपुलर। नेक्स्ट यू कैन सी, यू हैव टू से थैंक्स टू द डेडिकेटेड टीम हु इज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्टेज, जो प्रेजेंट नहीं थे बट बैक साइड दे हैड वर्क वेरी मच हार्ड वर्क दे हैड डन। लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट्यूम जो डिज़ाइन करके दिया, जो सिखाया लोगों को, ठीक है, तो उनका भी हार्ड वर्क को आपको अपलॉड करने का है। ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट फॉर देयर ग्रेशियस प्रेजेंस। ऑफकोर्स चीफ गेस्ट को आपको थैंक्स करने का है दैट दे आर प्रेजेंट एंड दे हैड मेक दिस इवेंट मोर यू कैन सी मेमोरेबल। ओके। नेक्स्ट थर्ड पे आपको किसको थैंक्स करने का, यू हैव टू थैंक्स टू द
I would like to take this opportunity to thank the choreographers, those who had taught the children how to perform on the stage, डांस जिन्होंने सिखाया, डिज़ाइनर्स जो ड्रेस के थे, लाइट ऑपरेटर जिन्होंने टाइम टाइम से प्रॉपर लाइट ऑपरेट किया, एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट टीम. ओके, विदाउट देम द प्रोग्राम वुड नॉट हैव बीन सो पॉसिबल और सक्सेसफुल. इस तरीके से आपको थर्ड पे इन लोगों को भी थैंक्स बोलने का है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु इज़ द मोस्ट important people who requires the thank is the audiences who came, supported the event, liked the event, and make this event more powerful by being so supportive and responsive. Okay, so इस तरीके से आपको पूरा एंड में थैंक्स किसको बोलने का है, ऑडियंस को. ठीक है, तो लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स में पहले थैंक्स करना है जो पार्टिसिपेंट्स है, उसके बाद आपको थैंक्स करने का चीफ गेस्ट को, थर्ड पे जो कोरियोग्राफर्स थे, डिज़ाइनर्स थे, लाइट मैनेजर्स थे, उन सबको थैंक्स बोलने का, और लास्ट में ऑडियंसेस को. इस तरीके से आपका ये 4 मार्क्स का आंसर 6 पॉइंट्स में कंप्लीट होगा. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू डू. So now student, I am presenting one solved example of annual prize distribution. Okay, so please see the question. What is the question? Comparing script for annual prize distribution program. हमेशा बोर्ड का ना ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो हम यही कर लेते हैं. ठीक है, so you can see, you can write in the points or in this points form, बुलेट पॉइंट्स फॉर्म. सो फर्स्ट में क्या लिखने का है, एंकरर का आपको रोल प्ले करने का है. तो व्हाट यू आर सेइंग, एंकरिंग स्क्रिप्ट तैयार करनी है रिटन. तो लेट्स सी. नमस्ते एंड वॉर्म वेलकम टू एवरीवन. ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ महिला महाविद्यालय, आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते हो. आई वेलकम यू ऑल टू मोस्ट अवेटेड फंक्शन इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, दैट इज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करने का है. एवरी स्टूडेंट ट्राइज हिज वेरी बेस्ट इन स्टडीज, स्पोर्ट्स, cultural activities and various competitions, and there is a strong wish to succeed, win a prize. Today is the day you were awaiting for over the last 1 year. So of course the students prize distribution, if you would see those who work hard and they really get the prizes, तो वो लोग वेट करते हैं कि when the prize distribution is presented on the stage and I will go on the stage and collect the prize. So that thought is there in every winner's mind. So all winners are waiting for the prize distribution day, that when the day will come and I will receive the award back from the principal or chief guest. तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, that not only cultural but also academic and all the prizes today our students are going to get. So first announcement, I request all the dignitaries to light the auspicious light. तो जो chief guest है उसको you have to call upon the stage to lead the lamp on the stage to start the function. Announcement 2 क्या है, thank you everybody. I now request our art circle student to sing the welcome song. सेकेंड पे क्या रहता है, वेलकम सॉन्ग सिंग करना रहता है अंडर द गाइडेंस ऑफ म्यूजिक टीचर श्रीमती स्वरा जोशी. तो वहाँ पे आप म्यूजिक टीचर के साथ यू आर सिंगिंग द सॉन्ग्स. एक ग्रुप ट्रुप आके वेलकम सॉन्ग सिंग कर रही है, दैट यू हैव टू राइट. ऐसे ही आपको बोर्ड में भी लिखना है, तो ये आंसर याद रखना. थर्ड इज अनाउंसमेंट 3, थैंक यू फॉर द मेलोडियस सॉन्ग. ओके, थैंक यू, आपने इतना अच्छा सॉन्ग प्रेजेंट किया. इट हैज़ सेट द टोन फॉर द फंक्शन. इट वॉज द बेस्ट सॉन्ग परफॉर्मेंस दैट हैड हैपेंड. सो यू हैव टू थैंक टू ऑल द पीपल. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी अनाउंसमेंट 4 में क्या लिखना है. आई नाउ रिक्वेस्ट, मैंने बोला था स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन में आप प्रिंसिपल को बुलाओगे, एंडिंग ऑफ द फंक्शन में चीफ गेस्ट को बुलाओगे. सो आई नाउ रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल श्रीमती जो whosoever is there देशपांडे टू डिलीवर द इंट्रोडक्टरी स्पीच. मैडम फिर चली जाएगी स्पीच देके. तो क्या लिखने का, अनाउंसमेंट 5 में थैंक यू मैडम फॉर योर वंडरफुल स्पीच. ओके, आई नाउ रिक्वेस्ट द पाटिल SK टू इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट टू टूडेज प्रोग्राम एंड रिक्वेस्ट प्रिंसिपल मैडम टू फेलिसिटेट द चीफ गेस्ट. अब जैसे प्रिंसिपल बोल के जाता है फेलिसिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना है, वेयर प्रिंसिपल इज फेलिसिटेटिंग टू द चीफ गेस्ट. Okay, next announcement 6 में क्या लिखना है, थैंक यू पाटिल सर who is the chief guest who came over here and Deshpande madam. Okay, before going to the distribution of prizes, I request you request all of you to lend their attentive ear to the speech of today's chief guest. आप chief guest का speech starting में भी रखवा सकते हो या end में भी रखवा सकते हो, it is up to you. Okay, you have just been introduced to our chief guest, but her speech and experience
will prove to be the best possible introduction. I request जो प्रिंस आप देखोगे डैश डाला है मतलब जो भी चीफ गेस्ट है उसका नाम, मैडम टू काइंडली गाइड अस। चीफ गेस्ट है ना तो उसको स्पीच तो देना ही है, स्टार्टिंग में दे रहा है या तो एंड ऑफ द प्रोग्राम में देना है, बट दे हैव टू स्पीक, ओके। तो उनके स्पीच आपको रखने ही पड़ेंगे और उनके स्पीच होने के बाद थैंक यू भी बोलना है फॉर गाइडिंग अस। नेक्स्ट अनाउंसमेंट 7th पे आप लिख सकते हो थैंक यू मैम, ओके, फॉर सच ए नाइस speech. I am sure our students have benefited immensely from your experiences. I now request श्रीमती, एक टीचर का नाम डाल सकते हो, to take over and proceed with the prize distribution. I request our chief guest madam to kindly give away the prizes. तो आप या तो मैडम को कभी कभी देखो टीचर्स आके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, ओके, या समटाइम्स स्टूडेंट्स आर ओनली स्पीकिंग, तो इट इज़ अप टू यू किसको आप देते हो ये चार्ज। अगर स्टूडेंट का नाम है तो आप वहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालो एंड यू हैव टू आस्क द चीफ गेस्ट टू कम ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। वो लोग एक एक करके सबको प्राइज देते हैं, तो इसके लिए आपको स्टेज पे बुलाना पड़ेगा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट, थैंक यू मैडम। आई नाउ रिक्वेस्ट आवर को कन्वेनर मीन्स जो कंपेयरिंग कर रहा है और एक को बुला रहा है, दैट इज श्री फड़के BN टू ऑफर द वोट ऑफ थैंक्स। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या बोलने का रहता है स्टूडेंट, वोट ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट अनाउंसमेंट 9, थैंक यू सर, विद द परमिशन ऑफ द चेयर आई नाउ डिक्लेयर द प्रोग्राम ओवर। अब लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स है, तो वोट ऑफ थैंक्स चाहे तो जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा लिख सकते हो। आई थिंक आपका टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा दिया है। और अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल आप लिखोगे आई थैंक टू एवरीवन एंड इन दिस वे वी कैन क्लोज दिस इवेंट विद अ हैवी हार्ट। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करने का है, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर दैट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। सो ये फॉर्मेट आप प्लीज़ स्टडी करो अपने नोटबुक में, ये जो मैंने फॉर्मेट दिया है राइट इन योर नोटबुक फर्स्टली टुडे इटसेल्फ, देखो, देख के पॉज करो वीडियो एंड राइट इन योर notebook. Whenever the college will reopen, I'm going to check it, and this is the correct format to write the art of comparing. So I hope you understood this chapter, how to write in board exam. तो वापस देख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कनेक्टिंग इवेंट्स, कितने इवेंट्स आप रखते हो, टोटल 6 इवेंट्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंट्रोडक्टरी इवेंट रहेगा, सेकंड में आपका वेलकम सॉन्ग रहेगा, उसमें ही लाइटनिंग ऑफ द इवेंट भी रख सकते हो, फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी रख सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पे आप लोग वेलकम सॉन्ग कितने लोग रखते हैं, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आपका मेन इवेंट्स आ जाएगा, मेन इवेंट्स के बाद आप लोग देखोगे आप लोगों का क्लोजिंग एड्रेस आएगा वेयर द स्पीचेस आर बीन हेल्ड बाय द चीफ गेस्ट एंड द लास्ट इज वोट ऑफ थैंक्स। कंपेयरिंग स्टार्ट्स विथ अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा देना है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन दिया वैसे ही मैंने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी सेम दिया, तो आपको उसका 1 मार्क मिलेगा। एंड वन मोर, इफ़ यू सी इट इज़ समिंग अप, कैसे आप सम अप करके लिखते हो, सो दैट विल कम फॉर 1 मार्क। तो टोटल आपका 4 मार्क्स का इफ़ यू वुड सी this question will come. Take one exercise question. Imagine that you wish to organize one cultural event in your college. Prepare one script as a comparer. You can take some points like introduction, welcome speech. In that felicitation will also come, or felicitating the principal and the vice principal and chief guest, lightning of lamp, welcome song, मेन इवेंट्स एंड वोट ऑफ थैंक्स। तो वापस से बता रही हूँ आपको, इमेजिन दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग वन कल्चरल इवेंट इन कॉलेज। तुम्हारे कॉलेज में कल्चरल इवेंट है और परफॉर्मेंसेस कौन कौन से हैं ये सब आपको मालूम होना चाहिए, मेन इवेंट्स। और उसके ऊपर आपको स्क्रिप्ट बनाना है, उसमें स्क्रिप्ट में पहले इंट्रोडक्शन डालना है, फिर वेलकम स्पीच, फिर लाइटनिंग ऑफ द लैम्प, आफ्टर दैट वेलकम सॉन्ग, मेन इवेंट एंड वोट ऑफ थैंक्स। ये सब थिंग्स होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है। वेन एवर द कॉलेज विल रीओपन वी आर गोइंग टू चेक दैट होमवर्क क्वेश्चन। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आपके नोटबुक में लिखा रहना चाहिए। एंड ऑफकोर्स फॉर्मेट दिया था वो तो ऑफकोर्स आपके नोटबुक में लिखा ही हुआ होगा, सो राइट इन योर नोटबुक। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस chapter, that is art of comparing. I hope my dear students had understood how to write in board exam and of course in 11th standard upcoming exam in your answer, this question as your answer. This will come for 4 marks, okay. And
प्लीज़ बी सीरियस टू राइट दिस नोट्स। आपका ये जो क्वेश्चन है कम से कम ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 2 और 2.5 पेजेस में कंप्लीट होगा, ठीक है। ये राइटिंग स्किल थोड़ा आपको अच्छे से लिखने का, इंट्रोडक्शन, देन नेक्स्ट इज़ वेलकम स्पीच, देन लाइटनिंग ऑफ लैम्प, तो एक एक पैरा बना के आपको पॉइंट्स में या बुलेट पॉइंट्स में लिखने का है। तो ये आपका पेजेस कम से कम 2, बेसिकली मैं बोल रही हूँ आपको 2 पेज में या 2.5 पेज में ये पूरा आपको कंप्लीट करने का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करने का है। सो 2 पेज बोर्ड के हिसाब से करेक्ट, you can see way of presentation is 2 or 2.5 page में you have to complete this answer. Is that clear? So by this we come to the end of this lecture. Read the chapter very carefully, try to write the homework question and the questions which I had given by hearted, because it is definitely going to come in your 11th standard and of course in your board exam, and it is a short question. And enjoy learning. This is Garima Miss signing off. Stay home, stay safe.